છબીલદાસભાઈ, પૂજ્ય ગુરુદેવ અને સર્વેને મારા સાદર નમસ્કાર। આજ રોજ 14મી જાન્યુઆરી મકર સંક્રાંતિ આપણા ગુરુદેવનો પ્રાગટ્ય દિન। એ માટે એમને મને જ્યારે ફોન પર કહ્યું કે એ દિવસે તમારે 10-15 મિનિટ બોલવાનું છે, તો મેં એમને કહ્યું કે જેવી તમારો આદેશ। એમના આદેશ અનુસાર આજ રોજ આપ સમક્ષ મકર સંક્રાંતિમાં જે એમનો જન્મ થયો છે, પ્રાગટ્ય દિન, એ બાબતે થોડું જણાવીશ। સૂર્યનું દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ આયન, यानी તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય। 14મી જાન્યુઆરી, 14નો અંક એટલે 14 રૂપ ચંડી ચામુંડા। ચંડી અને ચામુંડા રૂપી 7 સ્વર્ગ અને પાતાળ રૂપી અનંત શક્તિ ધરાવનાર આપણા ગુરુદેવ, એમનું પ્રાગટ્ય ઉત્તરાયણને દિવસે થયું। આપણા જેવા પામર જીવો, અજ્ઞાન અને અંધકારમાં વસતા જીવોને પ્રકાશ તરફ લઈ જવા માટે તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય સ્વરૂપે તેઓ આપણા સર્વે માટે આજ દિને પ્રગટ થયા છે। અને એ પ્રાગટ્ય દિને હું મારા તરફથી, મારા પરિવાર તરફથી અને નવસારી પરિવારજનો સર્વે તરફથી એમને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું। આજે એમનો 73મો પ્રાગટ્ય દિવસ છે। 73મો અંક એટલે 7 ને 3 10, 10 દિશાઓમાં વ્યાપ્ત એવી શક્તિનો પ્રચંડ સ્ત્રોત તેઓ ધરાવે છે। હવે ક્યાંક કોઈ વાણી દોષ ન રહી જાય કે શબ્દ દોષ ન રહી જાય, એ માટે પ્રથમથી જ હું ગુરુદેવની ક્ષમા યાચું છું, તથા આપ સર્વની ક્ષમા યાચું છું। આપણે જે સ્થળ પર બેઠા છે, જે અંગારેશ્વર ધામમાં બેઠા છે, એ અંગારેશ્વર ધામ એ આપણા દક્ષિણ ગુજરાતમાં નર્મદા કિનારાથી નારગોલના દરિયા કિનારા સુધી, વાપીથી તાપી કે જે ભગવાન પરશુરામની ધરતી કહેવાય છે, એનો નકશો જોઈએ તો હું શરીરથી તમને શરીરની રીતે મારો જે અનુભૂતિ એમને કરાવી છે એ બાબતે વિચારીશ કે આપણું આ ધડ એ પૃથ્વીનો ભાગ છે, અને આપણું મસ્તક એ આકાશ અને પ્રકાશ, સૂર્ય અને તારાઓ સાથેનું એક બ્રહ્માંડનું પ્રતીક છે। તો આપનો ફેસ આ પૂર્વ દિશા, આ પશ્ચિમ, આ ઉત્તર અને દક્ષિણ, તો જ્યાં આપણે ત્રિપુંડ કરીએ છીએ, જ્ઞાન ચક્ષુ જ્યાં બતાવવામાં આવે છે, એ સૂર્યનું સ્થાન છે। બ્રહ્માંડમાં જેમ સૂર્ય સ્થિર થયા છે ઈશાન ખૂણામાં, તે જ રીતે આપણા ગુરુદેવ, આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવ દક્ષિણ ગુજરાતના ઈશાન ખૂણામાં એક સૂર્ય રૂપે સ્થાયી થઈ ચૂક્યા છે, અને પ્રકાશ, પ્રચંડ પ્રકાશ આપણા સર્વે તરફ પાથરી રહ્યા છે। એવો સૂર્ય બન્યા છે તો આપણે તારા બનવા કોશિશ કરીએ, એવી મારી અંતરની ઈચ્છા। હવે આજનો દિન એ પતંગનો પર્વ, પ્રકાશનો પર્વ કહેવાય। આજ રોજ સર્વે પતંગનો આનંદ માને છે। પ્રથમથી વાણી દોષ અને શબ્દ દોષ માટે ક્ષમા યાચી એ મુજબ પૂજ્ય ગુરુદેવની તુલના હું એક એવા પતંગ સાથે કરી રહ્યો છું કે જે દક્ષિણ ગુજરાતના ઈશાન ખૂણામાં અંગારેશ્વર ગામના પૂર્વ ઉત્તર આકાશમાં એ પતંગ સ્થિર થઈ ચૂક્યો છે। એ પતંગનો રંગ છે ભગવો। એ પતંગની કમાન ક્યારેય છટકતી નથી, કારણ કે પૂજ્ય ગુરુદેવ ક્યારેય ગુસ્સે થતા નથી। એ પતંગને ઠનકા મારવા પડતા નથી, કારણ કે તેઓ પ્રચંડ પ્રકાશ સ્વરૂપે સ્થાયી થઈ ચૂક્યા છે। અને એ પતંગને નમન બાંધવી પડતી નથી, કારણ કે 73મી વર્ષની જય ફળે પણ આપણને સર્વને શરમાવે એવી પ્રચંડ મનોબળ અને પ્રચંડ શારીરિક તાકાત બી ધરાવે છે। આ પતંગ પરમાત્મા રૂપી અદ્રશ્ય કન્યા અને પરમ શક્તિ રૂપી અદ્રશ્ય દોરી દ્વારા બંધાયો છે। હવે કહેશો કે પતંગ અને કન્યા દોરી તો તમે કહ્યું, પણ એક ફિરકી કહી, તો મુરબ્બી શ્રી છબીલ કાકાની હું માફી માંગુ છું, પણ મુરબ્બી શ્રી પૂજ્ય છબીલ કાકા જેઓ બિલ્લીમોરાના ગંગા માતાના મંદિર પાસે પૂજ્ય ગુરુદેવના છાયારૂપ બેઠા છે, એવો છે આપણે આ પૂજ્ય ગુરુદેવના પતંગની ફિરકી। અને એ ફિરકીમાંથી એમને જે ગરમ પિલ્લું કર્યું, ત્યારે આપણે સર્વે બિલ્લીમોરાના, નવસારીના સર્વે જનો આજે અહીં ઉપસ્થિત છીએ। અને આજના પ્રોગ્રામ માટે
દિલ્હી પરિવારને પણ હું આભાર માનું છું કે આજનો આ પ્રોગ્રામ દિલ્હી થવાનો હતો એની જગ્યાએ અહીં થયો અને આ ટોટલમાં પ્રાગટ્ય દિન 7/10 અને 14મી જાન્યુઆરીના અંક બાબતમાં આપ સર્વ સમક્ષ વાત રજૂ કરવાનો મને એક તક ગુરુદેવે આપી એ બદલ હું એમનો ઘણો ઋણી છું. હવે એ અનંત દોરી એ છબીલદાસભાઈ રૂપી ફિરકી કે જેનો દોરો ક્યારેય ખલાસ થવાનો નથી, કારણ કે પરમાત્મા અને પરમ શક્તિનો રૂપી અનંત દોરીથી બંધાયેલ છે અને આ પતંગ ક્યારેય કપાવાનો નથી, ક્યારેય કપાવાનો નથી. યુગો યુગો સુધી આ અંગારેશ્વર ધામમાં વીરપુર અને શિરડીની જેમ સદા સર્વદા ચકતો રહેશે એવી મારી અંતરની અભિલાષા છે. અને આપને સર્વે સાંજે જ્યારે પતંગ ચગાવે છે અને તેની સાથે જે એક લાલટેન સાથેનું બલૂન મૂકવામાં આવે છે એવું એક બલૂન બનીએ, એક દીવાદાંડી સ્વરૂપ બનીએ તો એ બસ એટલી હું ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરું છું. માનનીય ડોક્ટર સુરેશ ગાંધીએ સ્વામિનારાયણના આદેશથી આપણને સૌને સંબોધન કર્યું. પરિવાર બહુ મોટો છે અને સ્વામીજીને સાંભળવા માટે આતુર છે. આપણે સ્વામીજીને વિનંતી કરીએ તેઓ આપણને સંબોધન કરે અને આપણી અંદર જે અમને ગુણ ઉતારવા છે તે ઉતરે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે એવી વિનંતી સાથે હું સ્વામીજીને વિનંતી કરું છું. शांति शांति शांति. उपस्थित प्रियात्मन, हमारे यहाँ नारी के रूप में इस विश्व में हमारा आपका जो अवतरण हुआ है, क्या आपको अपनी शक्ति की जानकारी है? आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, विराट है, संकल्पवान है. आप अपने विषय में जानते हैं कि नहीं? पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है. जो अंदर है उसी का विस्तार आपका ब्रह्मांड है. कहीं कोई खंडन की बात नहीं है. आप किसी भी संप्रदाय में हैं, कोई पूजा पद्धति में है, आप कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं कोई खंडन की बात नहीं है. समझने की बात है, जीवन में उतारने की बात है. कभी आपने अपने विषय में सोचा? आप प्रकृति को देखें. हमारे अमरलाल साहब, हमारे डॉक्टर सुरेश गांधी ने बड़े सुंदर विचार आपको दिए. उसी का आधार लेकर के वेद और विज्ञान के माध्यम से आपको आपका परिचय कराऊंगा. प्रथम यह मान लें, आपको किसी का खंडन नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान का भाव खंडन करता है. हम अपना ही खंडन करते हैं. हम अपने को ही जो निर्माण करना चाहिए अपना, उसकी जगह अपना ही विनाश करते हैं. हमारा आपका जीवन पोषक है, लेकिन अज्ञान के कारण हम दाग बन जाते हैं. हमारे पास सब कुछ है. आप नर हैं कि नारी, अमीर हैं कि गरीब, बुद्धिमान हैं या नहीं पढ़े, लेकिन अनंत शक्ति हमारे आप में है. आप ठाकुर सेक्शन की बात लें, न्यूटन की लें, आर्किमिडीज की लें, सूरदास की लें, कबीर की लें, इनके पास क्या डिग्रीज थी? आज आपका विज्ञान भी मान रहा है. आपका जन्म स्वस्थ होकर
जब प्रकट हुए तो अनंत शक्ति के आप मालिक हैं, लेकिन हम अपने को नहीं पहचान सके और न पहचानने के कारण ही हम बहुत कुछ संघर्ष दुख उठाने के बाद भी जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। कोई भी कार्य करने के लिए पहले आपको विचार करने पर, आप में विचार शक्ति है। पशु अपने ढंग से जिएगा, चाहे मच्छर की बात हो कि शेर की बात हो, चाहे पोपट की बात हो, ये काटने की बात हो, वो अपने ढंग से जी लेंगे। लेकिन हमें आपको जो स्वतंत्रता मिली है, ये परमेश्वर की सर्वोत्तम देन है कि आपने अपने विचारों का स्वागत किया, आपने अपने विषय में कुछ सोचा, अपने विषय में जानने की कोशिश की। ये प्रकृति को देखिए, हर चीज पूर्णता की ओर जाती है। गेहूं बनेगा, आम की गुठली मान वृक्ष में से फिर गुठली बन जाएगी। प्रकृति में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, समय और संजोग से उसमें फल आता है, उसमें पूर्णता है। अब इसी बात को वैज्ञानिक ढंग से कह दूं, आपके पास कोई पौधा है, उसे आप खातर न दें, पानी न दें, आपने खातर पानी भी दिया, लेकिन अगर उस पर 2 किलो का पत्थर रख दिया तो उसका विकास नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि जहां दबाव है प्रकृति में, वहां विकास रुक जाता है। आप कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सब तो है खातर पानी, लेकिन आप पर दबाव कर रहे हैं। संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके अंदर जो अनंत बैठा है, आपके अंदर जो अनंत शक्ति है, सिर्फ आपके पास एक दबाव आ गया। सब कुछ है, हम लोग परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। हम चाहते हैं आकाश को छूना, हम चाहते हैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। हर व्यक्ति के अंदर एक भावना है कि मैं जमीन से आकाश तक पहुंचूं, यथार्थ पर पांव रखकर आप आसमान तक पहुंच सकते हैं। पहले यथार्थ क्या है उसे समझें। ये सब आपका जीवन विचारणी बनाना पड़ेगा। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि हमारे समक्ष जितने सफल हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो भी आप पाएंगे, जैसे सर सी वी रमन है, विक्रम साराभाई है, श्याम पितौड़ा है, ये लोग काफी शिक्षित हैं। जैसा शुरू में कहा, आर्किमिडीज की बात करूं, न्यूटन की, देखा जाए तो उनके पास डिप्लोमा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने अंदर महान क्रांति पैदा की है। आपसे मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हमारी भारत की संस्कृति की बात पूरे विश्व के लिए है, केवल आपके लिए नहीं। लेकिन फिर भी आप जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं, इतना स्वीकार कर लें। आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने पढ़ाई कितनी की, पैसा कितना कमाया, किस पद पर है,
सिर्फ इतना कहता हूं, आप नर हैं कि नारी, आप बालक हैं कि बालिका, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर विराजमान है, उपस्थित है। वैचारिक धारा पर आप में अनंत शक्ति है। पूरा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें कितनी शक्ति है जिससे आपका ये पिंड बना। आप नर हैं कि नारी, लेकिन हमारा विकास क्यों नहीं होता? जो स्वतंत्रता हमें मिली सोचने की, उस पर एक दबाव आया कि आप वर्तमान में हैं। हमारे आप पर दबाव भविष्य का जबरदस्त है। जो भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, केवल आपकी कल्पना है। कल जब आप उठेंगे तो जिम्मेदारी आपके हाथ में आएगी। तो कल की चिंता में आज आप कमजोर क्यों हो गए? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? पिछला कल आप अच्छी तरह बिताए। कई सालों से आप गुरु पूनम पर, मनीषानंद के जन्म दिवस पर यहाँ आ रहे हैं। हर साल आप अच्छी तरह मनाते हैं। पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से भी, गुजरात है, बॉम्बे है, पूना है, और मूल गुजरात और पंजाब को होते हुए भी लोग कनाडा, अमेरिका से भी आए और आते ही हैं, आज भी आए हैं। आखिर साल भर में आपकी क्या उपलब्धि है? पिछली बार जब आप जन्म दिवस पे आए थे, जो आपके समक्ष विचार दिया था, उसके आधार पर आप अपने को कितना ऊंचा उठाए? अगर उठाए हैं तो धन्यवाद, और नहीं उठा पाए तो कारण सिर्फ ये रहा, दबाव, भविष्य का दबाव। जैसा कि शुरू में कहा कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रकृति में भी अगर कोई डेवलपिंग प्लांट है, उसके ऊपर 2 किलो का पत्थर रख दोगे तो उसका विकास नहीं होगा। तो नेचर के एक नियम है। आप जब इस धरती पर आए थे, था आप पर कोई दबाव? फिर विज्ञान कहता, जन्म से जो हम हैं, साधना के द्वारा वही स्थिति को प्राप्त करना, वो योग है। जो हम थे जब आप जन्मे थे, आपको कोई चिंता थी? कोई भविष्य की बात थी? आप किसी को अच्छा या किसी को बुरा मानते थे? आप स्वयं निर्दोष थे? आपकी आंखों में पवित्रता थी? आपके हृदय में विशालता? आपका मन शुद्ध था? लेकिन जगत के संपर्क में आकर के सुनने और देखने से धीरे धीरे मन जैसी संगत किया, उसी तरह से विचार का परिवर्तन होता था। जो परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना और फिर बर्फ से पानी आ जाना। अगर हमारे आपके अंदर कुछ बुराई नजर आ रही है, उस अस्तित्व में विचारों के द्वारा परिवर्तन आया। और आपका विज्ञान खुद कह रहा है कि पानी से बर्फ का बनना ये परिवर्तन है। एक विधि से आप देखेंगे कि पानी बर्फ के रूप में आता है। समय संजोग से फिर आप देखेंगे कि बर्फ पानी के रूप में वापस आ जाता है। आप शुद्ध थे, बुद्ध थे, मुक्त थे। जगत को देख करके परिवर्तन हुआ, और जो बार बार बदल रहा है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, एक क्रम चल रहा है। उसी को संसार, उसी को जगत कहा। लेकिन आप तो वही के वही है। सूरज निकला, दोपहर होती है,
शाम होती है, जो सूरज डूबा वह निकलेगा। आज पूनम है तो अमावस आएगी, आज अगर अमावस है तो पूनम आएगी। आपका अपना देखें क्या फर्क पड़ा, आप इससे प्रभावित क्यों होंगे? केवल विचारों की बात। अब एक अमावस की बात ले लीजिए, सभी वर्ग के लोग मेरे संपर्क में हैं। हम लोग कहते हैं अमावस दिन कोई शुभ काम न करो, लेकिन कुछ लोग अमावस दिन शुभ काम करते हैं, इसके पीछे आपका विचार ही काम कर रहा है। अमावस अपनी जगह है, लेकिन एक में शुभ एक में अशुभ मानो। जब आप कहते हो सब में परमात्मा है तो अशुभ क्या हुआ? जय कृष्णामूर्ति कहता है, चाहे भारतवासियों, ये अमावस का चक्कर, बिल्ली का चक्कर, ये विधवा के चक्कर में से निकलोगे, ये अशुभ में से निकलोगे, तभी शुभ में प्रवेश पाओगे। अंधकार में से निकलोगे तो प्रकाश को जाओगे, लेकिन तुम निकलना ही नहीं चाहते, तो वहीं बैठे हो। आप एक दलदल में फंसे हैं, कोई निकालने के लिए आता है, लेकिन दलदल में रहते रहते आप उस दलदल को ही सब कुछ मान लिया। आप उससे निकले और आप निकल सकते। जैसा कि शुरू में कहा कि पशु पक्षी में उनका एक जीवन है, वो जिएंगे। पूरे ब्रह्मांड में उनका एक अस्तित्व है, वो अपने ढंग से जी रहे, जीते रहेंगे। लेकिन आप और हम, यहाँ जो बालक और बालिका बैठे हैं, जो नर और नारी बैठे हैं, आप में जबरदस्त सोचने की शक्ति है। न्यूटन ने देखा और सोचा और विचार करके बताया कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन के पहले भी लोगों ने देखा होगा कि एप्पल गिर रहा है, लेकिन विचार नहीं किया। यही मैं आपसे कहता, आप जी रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं। मैं आपकी किसी चीज का खंडन नहीं कर रहा। खूब पैसा कमाओ, खूब बड़े पद पे जाओ। यहाँ भी सब, यहाँ भी कमिश्नर बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, करोड़पति बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं। आप बढ़ो, लेकिन आप में चिंता क्यों आई? आप में दबाव क्यों आया? आप दुखी क्यों हुए? आपका जो अस्तित्व है वो तो आनंद का है, सत है, चेतन आनंद है, सच्चिदानंद है। आपने आनंद के अस्तित्व पर दुखों की इमारत क्यों ला करके बना दी? ये जो वास्तविकता है, जो आपका अस्तित्व है, वो आप नहीं बना पाते। लेकिन उसके आधार पर ये जमीन है, जमीन आप नहीं बना सकते। लेकिन जमीन के आधार पर जमीन का है, अब ईंट है कि पत्थर है, उसमें जो कुछ निकला है, आप जमीन नहीं बना सकते, आप पत्थर नहीं बना सकते। लेकिन जमीन के आधार पर जमीन की ही बनी हुई चीज से आप इमारत बना सकते हैं। जब मिट्टी आप देखेंगे ये आकार लेती है तो मिट्टी ही है, भले उसका आप ईंट बोले, पत्थर बोले, जो बोलना। आपका अस्तित्व सच्चिदानंद है, सत है, उसमें चेतना है, उसमें आनंद है। तो आपका अस्तित्व आनंद का है, और आनंद से आपने इमारत बनाई। आप कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आपने त्याग करके साधु वेश दान किया, आप महान योगी बने, फिर आप का कार्य किया, आप करोड़पति बने। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आपका जो अस्तित्व है वो आनंद का है। आप जो कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं, तो दुख कहां से आ गया? मैं कहता हूं 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाए, आप आनंद के लिए बनाए, दुख? अगर आप दुख समझते तो बनाते ही नहीं। आपने लगन किया तो आज दुख क्यों हो गया? आज आप बड़े बड़े पद पर हैं, तकलीफ क्यों उठा रहे? आज आप एक महान योगी हो गए, पूरे विश्व में आपका नाम हो गया, फिर आप परेशान क्यों हो गए? परेशानी का कारण
हम स्वयं, हम अपने को नहीं समझ पाए, चाहे वो रामायण से ले, चाहे वो महाभारत से ले, चाहे आज के किसी महापुरुष से ले या व्यक्ति से ले या किसी पदाधिकारी से ले। आप जो कुछ करते हैं आनंद के लिए, लेकिन आनंद में विक्षेप क्यों पैदा हुआ, आनंद दुख में क्यों बदल गया, अब आपको बताता। आप जरा सोचें, विचारें, पहले रामायण की बात ले लें, महाभारत की बात ले लें कि हमसे भूल कहां हुई। पूरी रामायण का आधार अगर लें तो दुख क्यों पैदा हुआ, महाभारत का आधार लें तो दुख क्यों पैदा हुआ। जरा विचार कीजिए। ईश्वर ने हमें आपकी धरती पर भेजा, आप कान नहीं बना सकते, आंख नहीं बना सकते, जीवा नहीं बना सकते, हाथ नहीं बना सकते, लेकिन आपके विचार का जो विकास है, प्रगति या अधोगति, वो सुनने और देखने से। इसलिए आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति के आधार पर सत्संग की बात, कीर्तन की बात, मंदिर की बात, मस्जिद गुरुद्वारे की बात, प्रार्थना स्थल की बात, चाहे आप प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें, माता पिता को प्रणाम करें, नदी की पूजा करें, पेड़ की पूजा करें, इस पूजा के रहस्य को समझें। सभी में परमात्मा है। तो आप जब किसी की पूजा करेंगे तो आपके विचार में परमात्मा आएगा। हम कहते हैं सब में परमात्मा है, तो जब सब में परमात्मा है तो परमात्मा में कुछ और देखना, वही दुख को भूल लेना है। हम लोग जंगलों में रहते हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे संत हैं, जंगलों में रहते हैं। कभी आपने सुना किसी संत को नाग ने काटा या शेर ने अपना खुराक बनाया? आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। कई बार पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा कि अचानक व्यवस्था के कारण अपने बच्चे को कोई जंगल में छोड़ आता है, जैसे समाज नहीं स्वीकार करता, भय के कारण, लज्जा के कारण, उस समाज में शादी के पूर्व बच्चे को स्वीकार नहीं किया गया। प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन समाज ने नहीं स्वीकार किया। समाज के भय के कारण बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाता है, फिर उसकी रक्षा नाग ने किया, गाय ने दूध पिलाया। क्यों? वो निर्दोष है, पवित्र है, शुद्ध है। यही बात मैं आपसे कहता हूं, मेरे प्रिय आत्मन, आप एक बार बच्चे जैसे बन जाए, आपके अंदर पवित्र भावना आ जाए, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोले, आपका चिंतन शुद्ध हो तो पूरा जगत आपकी सेवा में है। अरे इंसान तो इंसान क्या, ये नाग भी आपकी सेवा करेगा। भगवान शंकर का स्वरूप अब वैज्ञानिक लोग विचार कर रहे हैं। भगवान शंकर आंख बंद रखते, मुंह बंद रखते हैं, शुद्ध वातावरण में, गले में नाग है, सिर पर गंगा है। आज आपका मनोविज्ञान हमारी प्रतीक उपासनाओं का एक गहरा अर्थ लगा रहा है। अब खंडन नहीं कर रहे, पहले खंडन करते थे, ये सब क्या है। लेकिन अब तो रसिया के वैज्ञानिक भी हमारी रामायण, हमारे महाभारत, हमारी छोटी छोटी कहानियों पर विचार करके एक विचार दे रहे हैं कि भारत की हर चीज, उठना बैठना, सोना जागना,
प्रणाम करना, नमस्कार करना, मंदिर में जाना, नदी की पूजा, पेड़ की पूजा, ये सब के पीछे रहस्य है कि व्यक्ति अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करे। और जब वो शुद्ध होगा तो जैसे गुलाब का फूल खिलता है, उसमें सुगंध अपने आप आ जाती है। जब आप अंतःकरण खिलेगा, साहब ने कहा मानवता की बात, डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर बात की, मकर संक्रांति की, पतंग की, बहुत अच्छी बात सुन है। अब वही जब आपका अंतःकरण खिलेगा तो मानवता की महक उसमें अपने आप आ जाएगी। गुलाब के फूल को सुगंध ढूंढने की जरूरत नहीं, वह खिलता है और उसमें सुगंध आ जाती है। हम आप खिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं खिल पा रहे? या तो भूत से बंधे हैं या तो भविष्य में। वर्तमान में है आप, आज का दिन कितना अच्छा है, आप आज में हैं, अपने में उपस्थित हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी आप कहते हो कि परमात्मा मेरे साथ है। स्वामी जी अगर परमात्मा मेरे साथ है, एक बार मेरे से प्रश्न भी किया गया था, मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो पूर्णमदा पूर्णमिदम का हूं, भारतीय संस्कृति का एक सिपाही हूं, मैंने भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह पचाया है, मैंने राम को भी जीवन में उतारा है, कृष्ण को भी उतारा है, शिव को भी उतारा है, पैगंबर को